So now these 40-45 minutes will get over and we will stop for the day. ठीक है, थर्ड टाइम वापस लॉग इन नहीं करते फिर. ठीक है. Yeah. So I was talking about yogurt. ठीक है. So what is the recipe for yogurt? Milk powder is taken, condensed milk powder, or milk is taken, it is boiled, it is cooled and brought to the room temperature, and then these two bacterial strains are added. Proportion याद रखना है 1:1. It can be asked as an objective type question. So because of the fermentation, lactic acid will be formed, proteins will be gelled out, and what you get is the yogurt. It has got a dense consistency. And now in the market, like yogurt के अलग अलग flavors आते हैं. Okay, you can get fruit flavors. जैसे ये देखो, strawberry yogurt, banana yogurt. Okay, so these products are also available in the market. कभी taste किया है? Have you tasted it anytime? Yogurt is very good for the health. Digestion के लिए काफी अच्छे हैं. यहाँ पे दिया है देखो, it has got its probiotic properties. नॉर्मल योगर्ट का है. Okay, normal yogurt. So you can घर में भी हम लोग बना सकते हैं flavored yogurt. Okay, it is very good to taste. And market में एक ये आता है याकुल्ट पता है? उसका ऐड आता है टीवी में. याकुल्ट प्रोबायोटिक. So that is another example. Okay, प्रोबायोटिक मतलब good for the intestine. Especially ऐसा हो गया है कि अभी जो situation चल रहा है since the past few months, like maximum time people are at home. जो काम पे जा रहे हैं उनका अलग बात है, but there are people who are at home, and because of which physical activity has reduced a lot. Correct? तो physical activity जब इतना कम हो गया है, तो it has led to lot of problems with digestion. Right? So that's why in such cases, one can consume these products that will improve the digestion capacity. And probiotics जो है वो digestion के साथ साथ immunity को भी better करते हैं. In today's world, this has also become one of the priorities कि अपना immunity को बेहतर बनाना है. Right? So sometimes these products have to be consumed. And उसके लिए देखो, we are dependent on these microorganisms. ठीक है? Okay, so that was about yogurt. Butter. Okay, when you say butter, it's not just this kind of slabs that you get in the market. डेयरी के दुकान में देखो मक्खन मिलेगा, व्हाइट वाला. वो लिया है कभी? गोकुल अष्टमी के दिन लोग खाते हैं मक्खन. कृष्ण भगवान ने चुराया था जो बोलते हैं हम लोग. इन द अर्लियर डेज अमूल वगैरह तो था नहीं, यही मक्खन हुआ करते थे, घर में बनाते थे. करेक्ट? दैट टेस्ट इज टोटली डिफरेंट. उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट है, that is comparatively less as compared to this Amul butter. If you see Amul butter का टुकड़ा just ऐसे ही टेस्ट करो, it is salted, and उसके वजह से see somewhat for taste and all, that's a different thing, but in large quantities if you have, it is not good for the system. Blood pressure, obesity, accompanying problems. Correct? And that's why market में butter के अलग अलग brands आ गए. You have Amul light butter, मतलब उसमें salt नहीं होता है, and it has got less amount of cholesterol in it. So you have different products based on that. Correct? So butter, ultimately we cannot avoid it completely, but it is one of the dairy products. यहाँ पे microorganisms के point of view देख रहे तो butter is also one of the sources. Okay, so cultured conditions में we prepare butter in a economical scale. तो जब वो अमूल वाला कंपनी में गए थे ना हम लोग, तो I see in butter, like we are not taken directly into the lab because उसके लिए पूरा यूनिफॉर्म वगैरह पहनना पड़ता है, so that there is no contamination. But from a glass case we were seeing inside. तो बटर पूरा एक पाइपलाइन से पास होके बड़ा सा निकल के आता है, continuous output of butter, and the people over there, they keep on collecting it. एकदम देखते ही बनता था. And for a foodie like me, it was a very good sight, right? Can't help it. So butter is one of the very important products. Sweet cream, you know, अभी वो टेट्रा पैक्स आते हैं मार्केट में, अमूल गोल्ड है ना, अमूल क्रीम भी आता है मार्केट में. इट्स ओनली द मिल्क क्रीम, नथिंग एल्स, मलाई जैसा, है ना? कभी टेस्ट किया? लाइक एनी प्रोडक्ट यू कैन नॉट कीप हैविंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, बट सबका एक बार टेस्ट तो करना ही चाहिए, है कि नहीं? डेयरी प्रोडक्ट्स आर द गिफ्ट ऑफ द नेचर.
राइट. सो दिस हैड टू बी टेस्ट. तो ये स्वीट क्रीम वगैरह आते हैं उसको टेस्ट करो कभी. इट्स वेरी गुड. ओके. यस. देन आफ्टर बटर वी कम टू चीज. यस, सी दिस प्रोडक्ट्स. मैं जब पीपीटी बनाता हूँ तो आई विल पुट सम मोर प्रोडक्ट्स ऑन द स्क्रीन, तो दोनों के एक्सप्रेशन देखने लायक बनेंगे एकदम. ओके. यहाँ पे चीज हम लोग कहाँ यूज करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स? वेयर डू वी यूज? Pizza. यस, चीज बोलते ही सबसे पहले पिज्जा. करेक्ट. एंड अभी तो डोमिनोज के इसमें डबल क्रस्ट आने लगे हैं, है ना? चीज क्रस्ट, चीज क्रस्ट, दैट मींस लोडेड विद चीज. कभी देखा रहेगा पिज्जा का स्लाइस ऐसा लेते हैं. यस, एंड ऐसे एकदम खींच के निकालते हैं, पूरा चीज का पूरा स्ट्रैंड बन जाता है वहां पे. करेक्ट. एंड देन योर माउथ इज ड्रिपिंग विद चीज एंड ऑल. राइट. यस. तो चीज का अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं. यू गेट चीज स्प्रेड. ओके. यू गेट चीज स्लाइसेस. यू गेट चीज स्लैब. करेक्ट. अलग अलग फॉर्म्स में आता है, तो विच एवर इज कन्वीनियंट यू कैन कंज्यूम इट. एंड उसमें भी टेस्ट सब अलग अलग होते हैं. इफ यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज, उनका चीज बहुत डिफरेंट है. दे आर मच हैवियर देन व्हाट वी कंज्यूम. हमारे यहाँ का चीज काफी हल्का है वैसे देखा जाए तो. ओके. बट इन द वेस्टर्न कंट्रीज इट इज मच मोर. एंड उनका तो मतलब खाने पीने में देखा जाए, डाइट में तो इट इज ओनली चीज, मोस्टली चीज. वो हैमबर्गर वगैरह सब लेते हैं, उसमें मेयोनीज एंड चीज वगैरह सॉस लगाते रहते हैं. राइट. बट इन इंडिया द नॉर्मल डाइट इज नॉट दैट मच. अभी अभी वो वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पे आने लगा है. करेक्ट. बट आवर diet, our food source is totally different. Okay. So when you talk about cheese, it is again produced on a large scale and you require microorganisms of all these types. ये नाम देखो सब. Lactobacillus lactis. Okay. Lactobacillus cremoris. Streptococcus thermophilus. You have to remember the names of these microbes from which you get cheese. इनको यूज करके चीज बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे. ओके. तो सबसे पहले क्या आ जाता है? दीज थ्री बैक्टीरिया दे आर मिक्स्ड विद द मिल्क एंड व्हेन इट इज अलाउड टू सेटल फॉर सम टाइम, it will bring about fermentation and it will impart sourness to the milk. चीज का अगर टेस्ट देखेंगे ना, ओनली चीज, तो इट हैज गॉट अ स्लाइटली सार टेस्ट. वो सारनेस जो है वो इनके वजह से. ओके. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वे, WHEY. वे का मतलब है वाटर मिक्स्ड विथ योगर्ट. तो उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको वे प्रोटीन बोलते हैं. तो योगर्ट में पानी मिक्स करके उसका वे तैयार करते हैं एंड उसका पानी निकाल दिया जाता है. इट नीड्स टू बी रिमूव्ड सो दैट चीज गेट दैट डेंसिटी. योगर्ट के जितना पतला नहीं होना चाहिए ना, चीज का अपना टेक्सचर होता है. ओके. अल्टीमेटली शुरुआत सबका मिल्क से ही है, एज यू आर सेइंग, बट द डेंसिटी, द केमिकल कंपोजिशन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द कलर, फ्लेवर, टेक्सचर्स आर डिफरेंट. ओके. एंड ये देखो, चीज जो पुराने जमाने में बनता था ना, दैट वाज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल. नॉट द चीज डायरेक्टली, बट एक एंजाइम मिलता था जिसको बोलते हैं रेनेट. ओके. गाय भैंस के जो जिनको हम कैटल बोलते हैं, उनके एलिमेंट्री कैनाल में से यू गेट अ एंजाइम कॉल्ड एज रेनेट. मार्केट में रेनेट के टैबलेट्स मिलते हैं. Even today, many dairy owners, they prefer to buy these tablets, रेनेट एंजाइम का. एंड वो टैबलेट्स को यूज करके डायरेक्टली चीज प्रोडक्शन में यूज करते हैं. ओके. बट लेटर ऑन व्हेन इट वाज known to people, so people who are pure vegetarians, they don't prefer to take this, no, because ये कैटल के एलिमेंट्री कैनाल में से आया रेनेट एंजाइम. एंड इसको यूज करके जब चीज बना रहे हैं तो इट इज एज गुड एज अ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सोर्स. नहीं पसंद था. ऐसे देखा जाए तो पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन बोलना भी सही नहीं है, बिकॉज इफ यू सी दैट वे, देन मिल्क तो कौन सा वेजिटेरियन हो गया, है कि नहीं? मिल्क तो कोई प्लांट में नहीं आते, दैट इज अगेन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स. राइट. तो इन माय ओपिनियन नॉन वेजिटेरियन सोर्स उनको बोलना चाहिए वेर यू नीड टू किल एनी एनिमल. अगर किसी एनिमल का किलिंग करके कोई फूड प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको नॉन वेज. मतलब प्रॉपर
वेजिटेरियन ना, किसको? मिल्क को? वेगन एक वेगन न्यू मतलब आया है वेजिटेरियन। फॉर्मेट। यस, वेगन, वेगन बोलते हैं उसको। हाँ, हाँ, ओके, प्योर वेजिटेरियन, राइट, हर्बीवोरस ह्यूमन बींग्स, ओके। But they don't consume milk products and any animal products. Exactly, that's what I'm telling कि if you see the actual meaning of vegetarian and non-vegetarian, अगर strictly देखा जाए तो then vegetarian people should not be consuming milk also, okay, but ऐसा नहीं होता है ना. So non-vegetarian, even if you eat egg, for that matter, egg is not purely non-vegetarian because there are animals which produce unfertilized egg. पोल्ट्री में अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब है देयर इज नो गैमेट फ्यूजन. बट सर हाँ बोल. एक नॉन वेजिटेरियन हुआ ना, चिकन से आया एग। आया है चिकन से, बट चिकन को काटना नहीं पड़ता है ना एग निकालने के लिए. इफ यू आर किलिंग द चिकन टू ऑब्टेन द एग देन इट इज नॉन वेजिटेरियन. अभी गाय का दूध निकालने के लिए गाय को थोड़ी ना मारा जाता है. Got it? So, see, there cannot be a proper definition. This debate will always be there. Okay? And every person may have their own beliefs. But scientifically, अगर मैं बोलूं तो egg, the ones which are unfertilized, should not be categorized as non-vegetarian because we are not killing any organism in that. Unfertilized है, उसमें सिर्फ yolk है. अगर वो fertilized egg है, that means the male and female gametes are fused and the zygote or the embryo is there inside. उस अंडे को अगर मैं खाता हूं तो I am killing the embryo. Getting it? Similarly, if you say honey, तो हनी कौन से प्लांट से बनते हैं? इट इज अगेन अ प्रोडक्ट. वो हनी भी जो वॉमिट करते हैं वही हम लोग खा रहे हैं. गेटिंग इट? दैट इज द हनी दैट वी कंज्यूम. ओके, तो वो भी एनिमल सोर्स हुआ, राइट? सो लाइक दिस इफ यू सी इन द नेचर वी ऑब्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट सोर्सेस. बट नॉन वेजिटेरियन मतलब आइदर यू आर डायरेक्टली ईटिंग द एनिमल और यू आर किलिंग द एनिमल टू ऑब्टेन समथिंग. साइंटिफिकली मुझे तो वही सही लगता है. बिकॉज अगर ऐसे देखा जाए सिर्फ प्लांट सोर्स तो दूध पीना भी हमारे बंद हो जाएगा फिर. Getting it? Okay, so that becomes a totally different story anyways. And there are some communities जिनमें मानते हैं कि even microorganisms को भी नहीं मारना चाहिए. Okay, तो अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे. There's no way you can eat anything, right? इसलिए there are some communities जिनमें बोलते हैं कि underground vegetables नहीं खाते हैं और they don't consume, like सबका अपना जैन अपना belief है. Yes, like it is their own belief. So belief is respected, but scientifically we cannot call it like correct. Okay, every food is important. अभी जो प्योर वेजिटेरियंस है जो मीट वगैरह नहीं खाते हैं उनको उतना प्रोटीन्स नहीं मिलते जो नॉन वेजिटेरियन पीपल को मिल जाते हैं. बट इसका मतलब ये भी नहीं कि नॉन वेज में कुछ भी खा लो. यू कैन नॉट गो लाइक चाइना. ओके, जो भी कीड़े खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, उतना भी नहीं होना चाहिए. इवन वेजिटेरियन पीपल डू नॉट ईट एनी प्लांट मटेरियल. कि रास्ते में चल रहे भूख लगा तो पेड़ से पत्ते तोड़ के खा लिया, ऐसा तो नहीं होता है. Okay, so there is some limit to what we eat. So here when you are talking about microorganisms, अब ये चीज जैसे products जब बना रहे हैं तो it's like once the cheese is produced, you are not removing back the microorganisms and then consuming it. They are also entering your system. तो ऐसे हम लोग पूरी तरह से डिमार्केट कर ही नहीं सकते between vegetarian and non-vegetarian. Even if you don't want, there are living organisms going inside you. Getting it? Okay, so that is cheese production. You have to remember these three names. Okay, ये microorganisms के नाम आने चाहिए और ये रेनेट वाला जो पार्ट है ये भी आना चाहिए. Obtained from the alimentary canal of cattle. Okay, so later on when non-vegetarian people, like they did not have any problem with this, but when the vegetarian people they started consuming, okay, तो उनको एक डिमांड आ गया कि रेनेट से बना हुआ चीज हम नहीं खाएंगे. ठीक है. So then what happened?
Okay, there was some enzyme called protease which are obtained from fungi. अब ये protease क्या करते हैं? They digest proteins. नाम से ये एंजाइम का उसका फंक्शन पता चलता है. Protease enzyme can digest proteins or break down the proteins. So that enzyme was used to produce cheese without using any animal source. तो उसको vegetarian cheese करके बोलते हैं. Understood this? Okay. And ये देखो, whey is separated from the yogurt. जो whey protein मैंने बोला, तो उसमें क्या करते हैं? देखो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. Solid yogurt is cut into pieces. They are washed properly. Rubbing of salt on the yogurt. Okay, and mixing of essential microorganisms, pigments, flavors. At the end, whatever is your desired choice. ऐसे जगह पे चीज को सब मिक्स करके स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है. So the color of the cheese also varies depending upon the type. You have Swiss cheese, you have red cheddar cheese. बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के. मैं नेक्स्ट टाइम बाद में फोटोज में सब दिखाता हूँ. Getting it? Okay. So see, even when I talked about the Western countries, they have so many different types of cheese and all in their diet. We cannot say कि वो इतना unhealthy खाते हैं करके. Whatever diet has evolved in different places, it is because of the local climatic condition and the local availability of the resources. Okay, you cannot expect an American to sit and eat their food in a banana leaf with all the dal, sambar, chawal and all that we have. Because वहाँ पे वो resources है ही नहीं. Okay, तो उनके यहाँ पे जो शुरू हुआ वही खाएंगे वो. And also it depends on the local climate. In their country, because of the extreme cold conditions, they can afford to digest all that. But यहाँ हमारा climate अलग है. Okay, तो यहाँ के climate में अगर हम उस level का चीज वगैरह खाना शुरू करेंगे, it will be very difficult for us. You see the difference within India also. North में जाओ तो पराठे पराठे खाते हो. Because there it is mostly the cold condition. Right, so they can afford to digest it. And North वालों को मसाला डोसा दो तो लगते हैं वो कुछ खाया ही नहीं है. But they find it very light. तो साउथ में कैसा है? ज्यादा ठंडी नहीं पड़ते. साल में 3 ही सीजन है, hot, hotter and hottest. Right, so that's why they can afford to eat some fermented food like this. Okay, and they can actually digest it faster. So according to the climate, according to the lifestyle, this will change. तो एकदम easily हम यहाँ का variety खाने पीने का सब जो दूसरी जगह पे copy नहीं कर सकते. That's the reason these products like Domino's and Pizza Hut and McD and all, when they started in India, पहले बहुत ज़्यादा नहीं था इंडिया में, अभी बहुत outlets आने लग गए. Every youth is eating that. So see the condition that is happening. 10 में से 9 लोग हैं who are above the overweight mark. Because यहाँ हमारा lifestyle ही वैसा है. We are not used to it. That is why one has to consume with some sensibility. जो यहाँ से लोग निकलते हैं and they go to other countries for some work, या they settle over there, they find it difficult to adjust. Okay, तो अभी जैसे मैंने बताया कि microorganism like E. coli, it is found inside our intestine. वो अपने intestine के साथ ऐसे जुड़ गया है evolution में कि now whatever plant products that we have, उसमें जितना भी cellulose है, that cellulose is actually digested because of these E. coli. वो cellulase enzyme produce करता है उसको digest करने के लिए. Okay, so now without E. coli in the intestine, it will be difficult for us for digestion. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे साथ कभी कभी ऐसे भी जुड़ जाते हैं. ठीक है. एंड देन ये देखो, व्हेन वी सेड इन द बिगिनिंग वी टॉक्ड अबाउट वायरसेस. ओके, तो वायरसेस का मैंने बताया कि देयर इज वन टाइप ऑफ वायरस व्हिच कैन अटैक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज. तो मेनी अ टाइम्स दिस मिल्क प्रोडक्ट्स और द मिल्क इटसेल्फ जिसमें लैक्टोबैसिलस है, if the conditions where these milk products are produced, if their hygiene and cleanliness is not followed, imagine lactobacillus can get attacked by viruses.
ओके तो उसके वजह से जितने मिल्क प्रोडक्ट्स बने हैं दे कैन बिकम वेरी पॉइजनस। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। द डेयरी ओनर्स दे फेस दिस मेजर चैलेंज कि अगर उनके मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में वायरस अटैक हो गया तो ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी डैमेज्ड। सो फॉर दैट देयर आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट हु हैव हेल्प्ड। व्हाट डिड द बायोटेक्नोलॉजिस्ट डू या जेनेटिसिस्ट उस बैक्टीरिया का जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे थे, दिस एग्जांपल्स दैट वी हैव सीन राइट नाउ, उनका म्यूटेशन किया। What do you mean by mutation? I think in the first lesson we have discussed that. जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है उसको बदल दो स्लाइटली। सो वो ऐसा म्यूटेशन कर दिया कि इवन इफ द वायरस अटैक्स द बैक्टीरिया विल नॉट बी इन्फेक्टेड। तो ऐसे जो बैक्टीरिया बने उसको बोलते हैं म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया। एंड दिस इज समथिंग वी हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियली। ये नेचर में नहीं बना है। यू वोंट गेट दिस म्यूटेटेड वैरायटी इन द नेचर। तो इससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि वी आर एबल टू प्रोड्यूस म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया which are not attacked by the viruses, so the dairy products are more preserved and better saved. They are not destroyed. Okay, तो देखो freshly prepared cheese वो हमेशा soft सा रहता है, but when you preserve it, when you store it for a long time, the texture can change. What do you mean by cottage cheese? Paneer. Yes, very good. Cottage cheese is nothing but paneer. That is another very good product in our country. है ना, अलग अलग तरह के सब्जी खाते हैं, पनीर मखनी, दाल पनीर वगैरह सब, राइट। एंड अभी तो पनीर सब में आ गया, पिज्जा पे भी आ गया, डोसा में भी आ गया, है ना। ये सबके मुंह में पानी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ नो ये लेसन के बाद अभी डिनर ही करना है सबको, राइट। तो कॉटेज चीज इज नथिंग बट पनीर। घर पे भी बनता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूध उबालने रख दिए तो दूध फट गया। व्हाट डू यू मीन दूध फट गया? बचपन में ये बहुत फनी लगता था अपने को, दूध फट गया। फटा हुआ दूध कैसा दिखते हैं? लिक्विड अलग और सेमी लिक्विड सब साइड। यस, तो उसको जब हम फिल्टर कर लेते हैं एंड यू रिमूव द सॉलिड पार्ट, कलेक्ट इट एंड उसको कपड़े में टाइटली बांध के रखते हैं सो दैट यू रिमूव ड्रेन आउट ऑल द लिक्विड। फिर जो कंटेंट बच रहा है, दैट कोगुलेटेड प्रोटीन विच यू हैव प्रिजर्व्ड, उसको डाल के रखते हैं ब्राइन सोल्यूशन में। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब है सलाइन सोल्यूशन जिसमें सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर है। तो वो कपड़े में पोटली बांधकर उस पोटली को ही ब्राइन सोल्यूशन में रख देते सो दैट इट टेक्स इन लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। दैट इज द पनीर विच यू गेट एट द होम लेवल। यू कैन डू दैट, बट इंडस्ट्रियल लेवल पे पनीर बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। कि दूध को जबरदस्ती फाड़ते फिर उसका पनीर बनाते। ओके, दैट इज कॉटेज चीज। क्रीम चीज होते हैं, जैसे चीज स्प्रेड आता है मार्केट में, यू गेट स्मॉल डिब्बीज मिलता है उसका, क्रीम चीज। मोज़रेला चीज येलोइश कलर का, वेरी टेस्टी। ओके, जो पोटैटो वेफर्स वगैरह के साथ लेके खा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर चीज विच आर सॉफ्ट, बट इफ यू स्टोर इट, जैसे 3 to 12 months तक स्टोर किए, तो यू गेट सेमी हार्ड चेडार चीज। ओके, इन द वेस्टर्न कंट्रीज इफ यू गो ना, अभी यहाँ पे इंडिया में जो हम पिज्जा वगैरह खाते हैं वो बहुत ही हल्के पिज्जा है, बट यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज एंड यू हैव द पिज्जा ओवर देयर, इतना चीज से लोडेड रहेगा कि यू विल जस्ट फॉल डाउन। ओके, उसमें बहुत सारा चीज होता है एंड वो चीज भी काफी हैवी होते हैं। इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर यू टू डाइजेस्ट दैट, ठीक है। दैट इज डिफरेंट चीज। चेडार चीज वगैरह हम लोग इंडिया में ज्यादा यूज नहीं करते। एंड देन 12 to 18 months तक अगर स्टोर करे, 1-1.5 साल तक, तो यू गेट वेरी हार्ड चीज जिसको बोलते हैं पार्मेसन चीज। इमेजिन इफ यू कंज्यूम पार्मेसन चीज हियर, तो ऐसा लगेगा कि एनाकोंडा ने डियर को खा लिया और 1 साल तक डाइजेस्ट किए जा रहे।
That will be the condition. Okay, so that is cheese. But from microbiology point of view, you should be aware about all this. ठीक है. अभी recently, like you all know कि मैं SIS कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो we have a department of microbiology in our college. तो माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट ने एक छोटा सा फेस्ट रखा था. इट वाज जस्ट समवेयर इन आई थिंक जनवरी या फरवरी के टाइम पे इसी साल. तो द टीचर्स फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट केम एंड इनवाइटेड कि आज हमारे डिपार्टमेंट में लैब में फेस्ट रखा हुआ है. इट्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी का ही पूरा डिस्प्ले टू इन्फॉर्म द पीपल हु आर नॉट इन दिस फ्रेटर्निटी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने यूजफुल है. तो पूरे लैब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके सारे प्रोडक्ट्स जो बनाए थे वो वहां पे रखा था एंड पीपल वर अलाउड टू कम एंड टेस्ट. So we had chocolates, we had different types of cheese, bread, butter, न जाने क्या क्या पूरा ठूस के आगे. Because it was for the people, so there was no limit to how much you can consume. सब कुछ करके एंड में वाइन पीकर आ गए. Okay, so that time we realized कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कितने सारी चीजें बन सकते हैं. Right? So this is a very interesting subject if you are interested. Similarly, when I was in college, so graduation के time पे we were taken on a study tour. I was in botany. So in botany also we study microbiology. बस plants का microorganisms के साथ भी अच्छा खासा relation है. So we were taken on an excursion या study tour to Nasik. And Nasik, you know very well, is famous for grapes. Correct? तो grapes का wineries बहुत है वहाँ पे. So there is an industry called the Sula wines. We were taken over there industrial tour के लिए. तो वहाँ पूरा हमें दिखाया कि कैसे grape juice निकाला जाते हैं और कैसे उसमें से वाइन्स बनते हैं. तो इट वाज अ वेरी यूजफुल, मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब फर्मेंटेशन टैंक्स, वेरी बिग वंस, एंड एट द एंड यू गेट टू टेस्ट वाइन आल्सो ओवर देयर. सो कभी अगर पॉसिबल हो तो वहां विजिट करो. वेरी गुड प्रणव, यू हैव बीन देयर. Okay, so this kind of visits when you do now, when you actually go to the industry and see, you come to know the practical aspect. कि पता चलता है. ये सब साइंस में थियरी में पढ़ रहे हैं हम लोग, बट व्हेनेवर पॉसिबल गो टू द प्लेसेस. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर. अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हमने जो आज डिस्कस किया, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in all different types of dairy products. ठीक है? Any doubt in this? Everyone? कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, so we can do this. Because I think एक और प्रोबायोटिक सिर्फ कर लेते हैं, then we can stop for the day. या बोलना. Yes नेहा. घी बेटर होता है ज्यादा कि बटर? I think you know the answer. What is your opinion? इंडिया में सब घी. Okay. What about others? Ghee, butter, which one should be a preferred choice? Give your opinion, बोलो. घी. दोनों अपनी अपनी जगह है. अच्छा, okay. आनंदिता पॉलिटिशियन बनेगी अभी. What about others? प्राची, मृणाल, गर्गी. Ghee. Okay. See, Sneha, that's a good question. घी और बटर के बीच में अगर ऑप्शन बोला जाए ना, टेक्निकली इफ बोथ आर ऑफ प्योरेस्ट क्वालिटी विदाउट एनी एडल्ट्रेशन एंड ऑल, देन घी इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन. एंड इंडिया में इट इज वेरी फेमस देसी घी जो हम बोलते हैं, जो प्रॉपर दूध का बना हुआ है. यस प्रणव, यू आर ऑल्सो इन द घी कैटेगरी. ओके, जो घी होता है ना, जो प्रॉपर दूध का बनता है, उसमें सर मेरी मम्मा है ना घर पर ही घी बनाती है. यस, कभी मुझे भी दे देना एक डब्बा, ठीक है? ओके, तो घी इज ऑलवेज दूंगी सर. yes. So that's always a very good option because ghee actually normally there is a misconception. लोग मानते हैं कि घी की वजह से बहुत हैवीनेस हो जाएगा, डाइजेशन में तकलीफ होगा, बट वो बटर की वजह से होता है, not because of ghee. Ghee in fact helps to lubricate your joints. It helps in digestion, but provided the condition is it should be of good quality. Because market में घी के बहुत brands हैं. Many of them are like उसका टेस्ट एकदम अजीब ही होते हैं, कड़वा रहेगा वो.
तो वो वाले घी लेंगे तो इट इज देयर इज नो पॉइंट इन कंज्यूमिंग दैट। एंड एक और आता है वेजिटेबल घी, जिसको बोलते हैं डालडा, हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं, दैट अगेन इज नॉट गुड। तो घी मीन्स घी, नॉट डालडा। डालडा इज नॉट गुड बिकॉज उससे बेटर है कि तेल पियो। ओके, सो बटर भी ऐसे बोला जाए तो सी वी कैन नॉट से कि एकदम उसको नहीं लेना चाहिए करके, जो लाइफस्टाइल आ चुका है इट इज अनअवॉइडेबल, ठीक है, बट यू हैव टू टेक इट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। एंड एज फार एज एनी डाइट इज कंसर्न्ड, एक ही इंपॉर्टेंट मंत्र याद रखना है कि द डाइट यू शुड हैव, देयर शुड बी अ गुड वैरायटी। हर दिन हम लोग सिर्फ रोटी सब्जी नहीं खा सकते, हर दिन चावल नहीं खा सकते, यू हैव टू कीप चेंजिंग। तो उससे क्या है कि अपने इंटेस्टाइन का माइक्रोफ्लोरा भी बेटर रहेगा। एंड सेकेंडली, how much ever you are consuming, whatever you are consuming, based on that there should be equilibrium with the physical activity that you do. तो इसीलिए for adults it is said कि based on the occupation that you have, corporate jobs रहते हैं जहाँ पे एक ही सीट पे पूरा दिन बैठना पड़ता है कंप्यूटर के सामने, तो that time your physical activity is hardly anything. तो ऐसे टाइम पे you should avoid certain foods. But there are people, okay, whose occupation is like there is a good amount of physical work that they do. अभी हम टीचर्स का ही देख लो, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे वो तो अलग बात है, बट व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड यू टीच, इट रिक्वायर्स एनर्जी। ओके, तो ऐसे टाइम पे द डाइट कैन चेंज। द डाइट कैन ऑल्सो चेंज बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। तो इसलिए कोई भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये खाना ही चाहिए या वो नहीं खाना चाहिए करके। कीप अ वैरायटी, दैट्स द बेस्ट थिंग खाने पीने में। एंड नेचर का भी रूल है, चार्ल्स डार्विन ने भी बोला है, वेरिएशन इज द रूल ऑफ द नेचर। हर चीज में वैरायटी रखो। एवरी डे यू ब्रश योर टीथ, डोंट यूज द सेम टूथपेस्ट एवरी टाइम, बदलते रहो। अदरवाइज अपने मुंह के जो जर्म्स है वो इम्यून होते जाएंगे अगर एक ही टेस्ट बोल रहा हूँ टूथपेस्ट को यूज करते जाएंगे तो व्हेन यू मेंटेन अ वैरायटी, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव विद इन यू फॉर लॉन्ग टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो जस्ट 5 minutes आर रिमेनिंग, ऐसे डिस्कस करते हैं, देन वी कैन स्टॉप फॉर द डे एंड ये लेसन फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इसलिए घी भी खाओ, बटर भी खाओ, एंड एज फार एज यू ऑल आर कंसर्न्ड, यू ऑल आर इन द ग्रोइंग एज, तो अच्छे खासे से खाओ। अभी डाइट वाइट का कुछ सोचना नहीं है, गेटिंग इट, ओके। घी भर के खाने का, एंड बाद में पूरा लाइफ पड़ा है सब पचाने के लिए, करेक्ट। एंड मैंने ये भी सुना है, आई हैव सीन स्पेशली यंग टीनेजर्स लाइक यू कि व्हेन यू से डाइट, तो डाइट करने का मतलब है खाना बंद, या ज्यादा से ज्यादा ब्रेकफास्ट में 1 कप दूध पी के आ जाते हैं। दैट इज रॉन्ग। खाना चाहिए ना अच्छे से, क्या बोलते हैं आदित्य? यस सर, खाना चाहिए, सिर्फ Yes. हेवी फूड ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा नहीं लेना चाहिए, जंक फूड, हाँ जंक फूड, यस। एंड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड द फूड्स दैट विल कंटेन प्रिजर्वेटिव्स, जो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पैकेज्ड फ्रूट जूसेस आते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर होते हैं। ओके, 6 महीने से पड़ा हुआ टेट्रा पैक में ऑरेंज जूस है, इंस्टेड ऑफ दैट बेटर यू बाय एन ऑरेंज एंड ईट इट। एंड फ्रूट जूस से भी बेटर है डायरेक्ट फ्रूट्स खाओ, ओके, बिकॉज यू हैव टीथ एंड एवरीथिंग टू tear the fruits, cut the fruits and eat it. It is good for your teeth. जूस निकाल दिया तो मेन जो उसके फाइबर्स है वही चले गए ना। वंस इन अ व्हाइल इमरजेंसी में अगर एकदम से कुछ पीना पड़ा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू हैव अ चॉइस, प्रेफर अ गुड ऑप्शन, ओके। तो हेल्थ इसी सब चीजों से अच्छा रहेगा। So always microorganisms are very very important. Any other thing to say? 4 minutes are remaining, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बोलो, कुछ और डिस्कस करना है, पूछना है? 6th लेसन का टेस्ट संडे को रहेगा ना? हाँ, वेरी गुड पॉइंट, यस, अच्छा हुआ। कमिंग संडे, आई हैव नॉट टेकन द टेस्ट ऑन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, राइट? नहीं लिया है उसका। वो भी लिया है, ओके। तो अभी संडे को कौन सा लिखना है नेक्स्ट? हाँ, नाउ व्हिच वन यू वांट? एक ही बाकी है अभी। हाँ बराबर, एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके। तो संडे सर लेकिन हाफ बहुत बड़ा है।
चलेगा. एनिमल क्लासिफिकेशन वी कैन कीप हाफ. फाइलम तो एक ऐसा करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेसन टिल फाइलम आर्थ्रोपोडा, अप टू आर्थ्रोपोडा इंक्लूडिंग नहीं, आर्थ्रोपोडा. इकोनोडर्माटा तक रखो सर, क्योंकि हेमिकोडेटा के बाद के सब बैकबोन वाले हैं ना, तो चलेगा, मुझे कोई इसलिए। प्रॉब्लम नहीं. आई एम रेडी टू कीप द फुल लेसन ऑल्सो इफ यू से. तो सी द टेक्स्ट बुक एंड टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेसन टिल वेयर डू यू वांट. एटलीस्ट आर्थ्रोपोडा तक तो लेना ही है. फाइलम तक, फाइलम तक मतलब विच फाइलम? फुल फाइलम तक. You mean to say till non-chordates? Chordata. Non-chordates. Yes. So up to hemichordata? सर फाइलम आर्थ्रोपोडा. Arthropoda या hemichordata बोलो. Up to where? Chordata. आर्थ्रोपोडा. Arthropoda. How many of you want hemichordata? Diksha, you ready? दीक्षा डर रही है. प्राची दोनों भी चलेगा मुझे. ये देखो डिप्लोमेटिक. एक काम करते हैं, वी विल कीप इट टिल आर्थ्रोपोडा. ठीक है. बिगिनिंग ऑफ द स्टार्टिंग में वो क्राइटेरिया वो सब भी है पूरा, तो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड. एंड अप टू आर्थ्रोपोडा इंक्लूडिंग आर्थ्रोपोडा. एंड आर्थ्रोपोडा के बाद जो मोलस्का ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द लेसन, दैट विल बी नेक्स्ट वीक. इज दैट ओके? सर फिर एग्जाम्पल जो आपने जितने दिए वो रहेंगे कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के? एवरीथिंग. ओके. टेक्स्ट बुक का तो सब पढ़ना ही है. ठीक है. एक काम करो, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर तो आएगा नहीं. तो ओनली द टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स. ठीक है. एंड सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स वगैरह एवरीथिंग जस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. मेरा पेपर जो भी बनेगा पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ड ही होगा. ठीक है. तो बी रेडी फॉर संडे. व्हाट टाइम? 11. ओके. संडे 11 o'clock. ठीक है. ओके. तो स्नेहा डू वन थिंग, संडे को 10:45 को जस्ट एक रिमाइंडर मैसेज भेजना, बिकॉज कॉलेज का भी प्रैक्टिकल्स भी चल रहा होगा. तो इफ आई एम बिजी ओवर देयर तो जस्ट आएगा दैट आई हैव टू पुट द क्वेश्चन पेपर. मेरे पास तैयार रहता है, बट बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन सम अदर वर्क तो डालना रह जाता है कभी कभी. एंड तुम लोग एकदम कार्टून लोगे, कोई बताते भी नहीं है मुझे फिर. ठीक है. तो जस्ट सेंड मी अ रिमाइंडर एट 10:45. ओके. या ठीक है. तो वी विल स्टॉप फॉर नाउ. ओके. प्रिपेयर करो अच्छे से. ओके. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेसन टिल आर्थ्रोपोडा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ठीक है. चलो बाय एवरीवन. गुड नाइट. पेपर्स कभी मिलेंगे? एज अर्ली एज पॉसिबल. आई एम स्लीपिंग ओनली 3 hours एट नाइट. ठीक है. तो थोड़ा सा वेट करो. आई विल गिव, डोंट वरी. ठीक है. चलो बाय. गुड नाइट. टेक केयर.